یہ کہانی غریب کمہار کی بیٹی مریم کی ہے جو اپنے ہنر کے لیے پورے گاؤں میں مشہور تھی۔ وہ بڑے ہی خوبصورت مٹی کے برتن بنایا کرتی تھی، لیکن ایک دن اس کی محنت مٹی میں مل گئی۔ جب ایک گھڑ سوار اپنے گھوڑے پر سوار سفید لباس میں تھا، اس کے سارے برتن توڑ کے چلا گیا۔ مریم کے لیے یہ بات کسی صدمے سے کم نہیں تھی، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے اس نوجوان سے اپنے نقصان کی بھرپائی کے لیے اس کی انگوٹھی مانگ لی۔ وہ نوجوان پہلے ہنسا، مگر پھر اس نے مریم کی آنکھوں میں جھلکتے آنسوؤں کو دیکھا اور اپنی قیمتی انگوٹھی اسے دے دی۔ مگر جب وہ گھر پہنچی تو اسے احساس ہوا وہ انگوٹھی کہیں گر گئی ہے۔ اسے لگا اس کی قسمت ہی خراب، لیکن رات میں اس کا چھوٹا بھائی سمیر اس کے لیے انگوٹھی لے کر آیا، جسے پا کر مریم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ مریم کے گھر کے حالات اچھے نہیں تھے۔ اس کے ابا مٹی کے برتن بنایا کرتے تھے، مگر بیماری کی وجہ سے اب وہ کام نہیں کر سکتے تھے۔ ایسے میں گھر چلانے کی ذمہ داری مریم پر آ گئی تھی۔ اس نے برتن بنانے کا ہنر سیکھ لیا اور اپنی محنت سے پورے گاؤں میں اپنی پہچان بنا لی۔ ایک دن گاؤں کے ایک امیر آدمی کے بیٹے زاہد نے مریم کے ہنر کو دیکھا اور اسے یقین دلایا کہ اس کی بنائی ہوئی چیزیں شہر کے میلے میں خوب بکیں گی۔ یہ سن کر مریم کے دل میں امید کی کرن جاگی۔ اس نے نئے جوش کے ساتھ اور بھی اچھے برتن بنائے، مگر تبھی اس کی ملاقات پھر سے اس گھڑ سوار سے ہو گئی۔ اس بار وہ آیا تو تھا مریم کا نقصان بھرنے، مگر مریم کے دل میں اس کے لیے کئی سوال تھے۔ وہ نوجوان مریم کے آس پاس نظر آنے لگا۔ پہلے جہاں اس نے اس کا نقصان کیا تھا، اب وہ اس کے ہاتھوں میں پیسے رکھ کر چلا جاتا۔ مریم کے دل میں سوال اٹھے، کون تھا؟ کیوں بار بار اس کے سامنے آ جاتا تھا؟ مریم محنت کرنے پر یقین رکھتی تھی۔ اس دن مریم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے برتنوں کو بیچنے کے لیے دوسرے گاؤں جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ صبح ہی نکل پڑی اور پورا دن گاؤں کے چکر لگاتی رہی۔ ایک ایک گھر جا کر لوگوں سے کہہ رہی تھی، حالاں یہ برتن لے لو، چاچا یہ گلاس دیکھ لو، مٹی کا بنا ہے، میں نے خود اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے۔ لیکن کسی نے بھی اس سے ایک برتن تک نہیں خریدا۔ اس کی مایوسی اب انتہا کو چھو رہی تھی۔ شام ہوتے ہوتے وہ تھک کر چور ہو گئی تھی اور مایوسی سے اس کی آنکھیں بھر آئی تھی۔ کیا فائدہ اتنی محنت کرنے کا؟ یہ سوچ کر اس کی آنکھوں میں آنسو جھلک آئے تھے۔ اب اندھیرا آہستہ آہستہ پھیلنے لگا اور اسے اکیلے اپنے گاؤں لوٹنے کا ڈر بھی ستا رہا تھا۔ تبھی اچانک گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ اس نے جیسے ہی پیچھے منہ کر کے دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ وہی نوجوان سفید لباس پہنے دھول اڑاتا ہوا گھوڑے پر سوار اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ مریم ڈر گئی۔ نوجوان گھوڑے کو اس کی طرف بڑھا کر رکا اور بولا، آج تمہارے چہرے پر بہت مایوسی ہے۔ مریم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اس کی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن پھر وہ کہنے لگا، دیکھو یہاں سے تھوڑی دور ایک بستی ہے جہاں لوگ مٹی کے برتن لینے کے لیے ترس رہے ہیں۔ اگر تم وہاں جاؤ گی تو تمہارے سارے برتن بک جائیں گے۔ مریم کو اس کی بات پر شک ہوا، کون ہے یہ اور کیوں میری اتنی مدد کرنا چاہتا ہے؟ لیکن حالات نے اسے سوچنے کا موقع نہیں دیا۔ نوجوان نے گھوڑے سے اتر کر اس کی طرف ہاتھ بڑھایا اور کہا، آؤ میں تمہیں وہاں تک چھوڑ دیتا ہوں۔ مریم کے دل میں ڈر تھا، لیکن وہ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا سوائے اس نوجوان کے بھروسہ کرنے۔ کچھ دیر بعد دونوں اس بستی میں پہنچے۔ وہاں کا نظارہ دیکھ کر مریم حیران رہ گئی۔ چاروں طرف سفید لباس پہنے مرد اور کالے کپڑوں میں عورتیں تھیں۔ وہ سب بہت عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ تبھی وہ نوجوان لوگوں کے پاس گیا اور اشارے میں کچھ کہا۔ پھر ایک پل میں سب عورتیں مریم کے پاس آ گئیں اور اس کے برتن خریدنے لگی۔ لیکن اس بار انہوں نے نہ صرف برتن خریدے بلکہ اس کی محنت کی قیمت بھی اچھی بنائی۔ مریم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ کچھ ہی منٹوں میں اس کے سارے برتن بک چکے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس نوجوان کی طرف دیکھنے لگی جو اب بھی اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں کچھ تھا جسے دیکھ کر مریم کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اب رات کے 9-10 بج چکے تھے۔ مریم کو گھر پہنچنے کی فکر ہونے لگی۔ اس نے نوجوان سے کہا، اب مجھے میرے گاؤں چھوڑ دو، بہت رات ہو گئی ہے، میں اکیلے نہیں جا سکتی۔ نوجوان ہلکی مسکان کے ساتھ بولا، فکر مت کرو، میں تمہیں تمہارے گھر تک چھوڑنے آیا ہوں۔ اسے پہلی بار وہ نوجوان اچھا لگنے لگا تھا۔ گھر پہنچ کر مریم نے جیب سے پیسے نکالے اور اماں ابا کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ اتنے سارے پیسے دیکھ کر اماں ابا دونوں حیران رہ گئے۔ ابا نے ہنستے ہوئے کہا، ارے واہ، میری مریم تو ماہر ہو گئی ہے برتن بنانے میں، لوگ اس کے بنائے برتن پسند کرنے لگے ہیں۔ مریم صرف مسکرا دی۔ اس نے کسی کو نہیں بتایا کہ اس بار برتن بکنے کی اصلی وجہ وہ نوجوان تھا۔ اگلے دن وہ پھر برتن بنانے میں لگ گئی۔ اب اسے اپنے کام میں اور بھی محنت کرنی تھی کیونکہ فیسٹیول قریب آ رہا تھا۔
जाहिद भाई ने उसे बताया था कि यूनिवर्सिटी में होने वाले फेस्टिवल में इसके बनाए बर्तन रखे जाएंगे। अब मरियम की मेहनत दुगनी हो गई थी। वो पूरे जोशो खरोश से बर्तन बना रही थी। कुछ वक्त बाद मरियम गांव के फेस्टिवल की तैयारी में लग चुकी थी। उसे अपने बनाए बर्तनों को मेले में बेचने का मौका मिल रहा था। लेकिन इसी दौरान वही नौजवान एक दिन अचानक उसके सामने आ खड़ा हुआ। लेकिन इस बार इसके चेहरे पर गुस्सा था। उसने मरियम से पूछा, तुम इस आदमी से क्यों बात कर रही थी? मरियम को पहले तो समझ नहीं आया कि वो किसकी बात कर रहा है। फिर उसे याद आया कि शायद जाहिद भाई की बात कर रहा है। मरियम ने हैरत से जवाब दिया, जाहिद भाई को इससे कुछ काम था। लेकिन इस नौजवान की जलन साफ दिख रही थी। एक दिन वो फिर आया और बोला, तुम्हारे बनाए हुए बर्तन मुझे चाहिए। मरियम ने बताया वो बर्तन फेस्टिवल के लिए हैं। लेकिन जब उसने अच्छे पैसे देने की बात की तो मरियम मान गई। उसने अपने हाथों से बनाए सारे बर्तन इस नौजवान को दे दिए। अगले दिन जब जाहिद भाई ने बर्तन दिखाने को कहा तो मरियम घबरा गई। जाहिद भाई गुस्से में थे, लेकिन मरियम ने उनसे वादा किया वो 3 दिन के अंदर सारे बर्तन बना लेगी। मरियम अपनी पूरी ताकत झोंक कर बर्तन बनाने में जुट गई। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक मौसम बिगड़ गया। तेज बारिश ने मरियम के सारे बर्तन बहा दिए। वो पूरी रात रोती रही, लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी। अब तो फेस्टिवल सिर्फ 3 दिन दूर था और बारिश थमने का कोई इम्कान नहीं था। आखिरी रात मरियम मायूसी में एक दरख्त के नीचे बैठी थी। वहाँ नौजवान फिर से जाहिर हुआ जिसने उसकी मदद की थी। उसने बड़े इत्मीनान से मट्टी उठाई और देखते ही देखते बर्तन बनाने शुरू कर दिए। मरियम की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं और इससे भी ज्यादा खूबसूरत बर्तन इतने दिलकश और बारीक डिजाइन वाले थे कि मरियम उन्हें बस देखती ही रह गई। जब उसने बर्तनों पर रंग करना शुरू किया तो मरियम को ऐसा लगा जैसे इसके हाथों में कोई जादू हो। चंद ही लम्हों में इसने सारे बर्तन तैयार कर लिए और मुस्कुरा कर बोला, सुबह तक ये सूख जाए। अब खुश हो गया और अपने चेहरे पर मुस्कुराहट दिख गई। इतना कहकर वो वहां से गुम हो गया। मरियम पूरी रात बेचैनी से करवटें बदलती रही। डर था कहीं बर्तन खराब ना हो जाए। लेकिन सुबह जब वो बर्तनों के पास पहुंची तो वो बिल्कुल सूखे हुए थे और उनकी चमक पहले से भी ज्यादा थी। जाहिद भाई जब फेस्टिवल से लौटे तो उनके हाथ में एक मेडल था। उन्होंने खुशी खुशी बताया, तुम्हारे बर्तन बहुत पसंद किए गए हैं। बड़े बड़े लोग आए थे, उन्होंने खूब तारीफ की। सारे बर्तन हाथों हाथ बिक गए। मरियम खुशी से फूली नहीं समा रही थी, लेकिन अब उसे उस अजनबी का शुक्रिया अदा करना था जिसने उसकी इतनी मदद की थी। वो उसी जगह पहुंची जहां वहां नौजवान अक्सर मिलता था, लेकिन वो वहां नहीं था। मरियम ने कई दिन इंतजार किया, लेकिन वो फिर नहीं आया। अब मरियम के बनाए बर्तन पूरे गांव में मशहूर हो गए थे। उसने और भी खूबसूरत बर्तन बनाए। उन्हें बेचने के लिए उसी बस्ती की तरफ चल पड़ी जहां उस नौजवान ने पहली बार उसके बर्तन बिकवाए थे। लेकिन इस बार वो रास्ता भूल गई। तभी उसने देखा एक बूढ़ा आदमी एक दरख्त के नीचे बैठा था। मरियम ने उससे पूछा, बाबा मुझे इस बस्ती का रास्ता बता सकते हैं जो जंगल के उस पार है? बूढ़ा चौंका और बोला, तू वहां क्यों जाना चाहती है? वो हमारी बस्ती है जहाँ किसी भारी बाहर वाले आदमी को जाने की इजाजत नहीं है। मरियम ने उसे अपने बर्तनों के बारे में बताया। कहा कि पहले भी उसने वहां बर्तन बेचे थे। बूढ़े ने इसके बर्तन उठाकर देखे और मुस्कुराकर बोला, वाकई ये बर्तन तो बहुत खूबसूरत है। हमें इनकी जरूरत पड़ती है क्योंकि हम हर रात पकवान तैयार करते हैं। लेकिन मुझे इस बात पर हैरत है कि तुम्हें वहां का रास्ता किसने दिखाया? मरियम मुस्कुराई और जवाब दिया, एक नौजवान जो घोड़े पर सवार होकर आता है, वो हमारे गांव आता है। ये सुनकर बूढ़ा हल्के से मुस्कुराया और कहने लगा, सरदार तो ऐसे ही हर गांव में घूमता फिरता है, लेकिन मैं नहीं जानता था वो तुम्हें इस बस्ती का रास्ता बता देगा। मरियम उसकी बातें ठीक से समझ नहीं पाई, लेकिन उसे वहां पहुंचने की जल्दी थी। बूढ़ा उसे अपने साथ लेकर लंबे रास्ते से गया। शाम होने लगी, लेकिन जैसे ही बस्ती पहुंची वहां की औरतें उसके बर्तनों को देखकर दंग रह गई। वो एक एक करके उससे बर्तन खरीदने लगी, जैसे इन्हें इसका बेसब्री से इंतजार था। मरियम के मन में एक ही सवाल था, जिस शख्स से वो मिलने आई थी वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। मरियम ने पास खड़ी एक औरत से पूछा, वो नौजवान कहाँ है जो मुझे यहाँ लेकर आया? मैं उससे मिलने आई हूँ। औरत मुस्कुराई और बोली, आज तो सरदार किसी दूसरे गांव गया है। दरअसल वो एक खास अमल कर रहे हैं, इसलिए मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं। लेकिन तुम्हें उनसे क्या काम है? मरियम ये सुनकर हैरान थी। सरदार? तो सोच में पड़ गई। तभी दूर से घोड़े की टापों की आवाज आई, दूर उड़ने लगी। जैसे ही मरियम ने पलट कर देखा, उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। वो वही नौजवान था। मरियम ने मुस्कुराते हुए कहा, जो आपने बर्तन बनाए थे, इनकी वजह से मुझे बहुत बड़ा इनाम मिला। मैं आपका शुक्रिया अदा करने आई हूँ। नौजवान ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं उससे भी बड़े बड़े काम कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे पास मेरी एक चीज है, इसलिए मैं बार बार तुम्हारे पास आने पर मजबूर होता हूँ। मरियम चौंक गई। मेरे पास आपकी कौन सी चीज है? उसने कहा, वही अंगूठी जो तुम्हारे पास है। उसने जवाब दिया। मरियम घबरा गई। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अनजाने में वो अंगूठी रख ली थी, लेकिन मैं आपको वो वापस कर दूंगी। वो मुस्कुराया और बोला, ठीक है, लेकिन जब भी मैं तुम्हें मेरी जरूरत हो
मैं तुम्हारी मदद के लिए आऊंगा। मरियम ये सुनकर खुश हो गई। उस दिन भी उसके सारे बर्तन बिक गए। नौजवान उसे घर तक छोड़ने के लिए चल पड़ा, लेकिन रास्ते में एक बूढ़ा नजर आया। नौजवान ने उसे देखा और अचानक रुक गया। फिर वह मरियम की तरफ मुड़ा और कहने लगा, आगे का रास्ता तुम्हें मालूम है, अब मैं जा रहा हूँ। मरियम ने देखा वो नौजवान एक पल में गायब हो गया। मरियम जैसे ही बूढ़े के करीब से गुजरी, उसने अचानक से उसे रोक लिया और कहा, तुम्हारे सारे बर्तन बिक गए? उसकी मुझे बहुत खुशी है, लेकिन तुम इस बस्ती में बार बार मत आना, क्योंकि ये बस्ती तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। क्यों बाबा? वो बस्ती तो बस एक आम सी जगह है जहाँ लोग रहते हैं। बूढ़े ने गहरी सांस ले कहा, नहीं लड़की, वो आम बस्ती नहीं है, वो जिन्नात की बस्ती है। और जिससे तुम मिल रही हो वो कोई इंसान नहीं, जिन्नातों का सरदार है। मरियम के पैरों तले से जमीन खिसक गई। नहीं, ये सच नहीं हो सकता, वो इंसान है, जिन नहीं है, उसने कहा। बूढ़ा मुस्कुराया, अगर यकीन नहीं आता तो देखो। ये कहकर वो अचानक गायब हो गया। मरियम पागलों की तरह इधर उधर देखने लगी। वो अब भी यकीन नहीं कर पा रही थी कि जो बूढ़ा कुछ ही सेकंड पहले उसके सामने था, वो अचानक हवा में गुम हो गया। बूढ़े की आवाज फिर आई, इस जिन की कीमती चीज तुम्हारे पास है, इसलिए वो तुम्हारे पास बार बार आता है। वो तुम्हें तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। यह सुनकर मरियम घबरा गई। अम्मा और अब्बा परेशान थे। अम्मा ने घबरा कर पूछा, मरियम, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? क्या हुआ है मरियम? मरियम बोली, कुछ नहीं अम्मा, बस इसने जिन्नातों की बस्ती से कमाए सारे पैसे अपनी माँ के हवाले कर दिए। खुद डर के मारे अपने कमरे में चली गई। अंगूठी का राज मरियम को अचानक बूढ़े की बात याद आ गई। तेरे पास इसकी चीज है, इसलिए वो तुझे छोड़ेगा नहीं। वो घबरा गई और संदूक खोला, लेकिन अंदर अंगूठी नहीं थी। ये वो रोने लगी। अम्मा, मेरी अंगूठी कहाँ है? उसने घबरा कर पूछा। अम्मा ने जवाब दिया, अरे वो अंगूठी तो मैंने देखी थी, बड़ी ही कीमती लग रही थी, सो मैंने उसे सुनार को दिखाया। कहने लगा, ये खालिस सोने की है। फिर मैंने उसे बेच दिया ताकि बशीर चाचा का कर्जा चुका सकूं। मरियम के हाथ पांव कांपने लगे। अम्मा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब समझ चुकी थी कि अगर वो अंगूठी किसी और के हाथ चली गई तो वो जिन बार बार उसके सामने आता रहेगा। वो अब भी उसकी नजरों में था, इसकी दुनिया से बाहर जाने वाला नहीं था। अगले दिन जाहिद भाई आए, बोले, मरियम, तुम्हारे अंदर एक सच्ची आर्टिस्ट छुपी है। जिस तरह तुम बर्तनों पर रंग भरती हो, इस तरह तुम बड़ी मुसव्विर भी बन सकती हो। तुम तस्वीरें बनाओ। मरियम सोच में पड़ गई। मैं तुम्हें ब्रश और रंग ला कर दूंगा, फिर देखना तुम क्या कर सकती हो। मरियम ने, लेकिन इसके दिल में अजीब वसवसे बैठे हुए थे। वो जानती थी इसके साथ कुछ अनहोनी होने वाली है, अनहोनी चीजें हो रही हैं। एक शाम जब वो दरख्त के नीचे बैठी थी, बर्तन बना रही थी, इस बूढ़े की टापों की आवाज सुनाई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। सामने वही सफेद लिबास में लिपटा जिन खड़ा था, जिसने पहली बार मरियम की मदद की थी, लेकिन इस बार उसकी तीसरी उंगली में वही अंगूठी थी जो उसकी माँ ने बेची थी। ये अंगूठी तुम्हारे पास कैसी आई? मरियम ने कांपती हुई आवाज में पूछा। वो जिन हंस पड़ा और बोला, मैं अपनी कोई चीज किसी और के पास नहीं रहने देता। तुम्हारी माँ ने उसे सुनार को बेच दिया था, लेकिन मैंने अपनी ताकत से इसे वापस ले लिया। ये मेरी जादुई अंगूठी है। मरियम के बदन में सनसनी दौड़ गई। फिर जिन ने अपनी हकीकत बयान की। उसने कहा, मैं पहली बार जब तुम्हें रोते हुए देखा था तो तुम्हारे आंसू मेरे दिल पर गिरे थे। तुम्हारे आंसुओं से मुझे इश्क हो गया था। तुम्हारे आंसुओं में कुछ था जो मुझे अपनी तरफ खींचता था। मैं इंसान नहीं, जिन हूँ, लेकिन तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मरियम खामोशी से सुन रही थी। तभी जिन ने अचानक उसकी अधूरी बनाई हुई बर्तनों की मट्टी को उठाया और एक ही झटके में खूबसूरत बर्तन बना डाले। ये पहली बार नहीं था जब उसने ऐसा किया। मरियम को याद आया, वो पहले भी तूफानी रात में किसी ने इसकी मदद की थी और उसे बर्तनों के लिए इनाम भी मिला था, लेकिन वो इससे घबरा गई। मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस तुम मेरे सामने मत आया करो, उसने दिल ही दिल में सोचा, लेकिन जुबान से कुछ ना कह सकी। जिन मायूस होकर घोड़े पर सवार हुआ और दूर चला गया। मरियम बस उड़ती हुई धूल देखती रही। फिर एक दिन जाहिद भाई ने उसे रंग और कागज ला कर दिए। अब जो तुम्हारे जहन में हो उसे कागज पर उतारो, उन्होंने कहा। मरियम ने अपनी आंखें बंद की, लेकिन इसके जहन में कोई और तस्वीर नहीं बल्कि उसी जिन की तस्वीर थी। उसकी शख्सियत उभर रही थी। उसने पेंसिल उठाई और उसके चेहरे का हाका बना डाला। जब तस्वीर मुकम्मल हुई, जाहिद भाई हैरान रह गए। वाह, पहली ही पेंटिंग इतनी खूबसूरत, अगर तुम मेहनत करो तो तुम बहुत नाम कमा सकती हो। लेकिन मरियम ने हिचकिचाते हुए कहा, यह काम मेरे घर नहीं चला सकता, मुझे ज़मीर के लिए इलाज के पैसे चाहिए। जाहिद भाई ने उसे समझाया, अगर वो पेंटिंग में महारत हासिल कर ले तो उसे उसी की बनाई हुई तस्वीरें बहुत कीमती बिकेंगी। मरियम ने उनकी बात मान ली और तस्वीरें बनाने लगी। लेकिन अजीब बात थी, हर रात जब वो तस्वीर बनाने बैठती तो उसे कुछ समझ ही ना आता, तो वो सो जाती। मगर सुबह जब आंख खुलती तो कागज पर एक बेहतरीन पेंटिंग बनी होती। आहिस्ता आहिस्ता उसकी पेंटिंग मशहूर होने लगी और घर के हालात सुधरने लगे। पैसे आने लगे, समीर का इलाज हुआ। मरियम ने अपने घर की मरम्मत भी शुरू कर दी। अचानक घोड़े की टाप की आवाज सुनाई दी। जिन ने इसके सामने खड़ा होकर आवाज लगाई, हर रात मेरी पेंटिंग कौन बनाता है? मरियम ने उससे झुकी हुई नजरों से पूछा। उस जिन ने कहा, मैं अपनी ताकत से कुछ भी कर सकता हूँ, और मुस्कुरा दिया। अब तुम्हारे पास एक पहचान है, तुम्हारा एक मकाम है, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करता रहूंगा। मरियम की आंखें झलक पड़ी। तुमने मेरी जिंदगी बदल डाली है, मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसने कहा,
پھر مریم نے کامتے ہاتھوں سے اسے ایک تحفہ دیا، اس کی بنائی ہوئی تصویر۔ جن نے اسے دیکھ کر بہت خوشی کا اظہار کیا